So hello friends, I hope you are all doing well. In this video I will discuss with you some articles in newspapers which I read on new education policy. Some of the best articles which I came across. There are 4 articles, 2 from the Hindu and 2 from the Indian Express. These 4 articles will provide you a very holistic and an enriching view of new education policy. So let's quickly begin this. The first, and I will also provide you the notes of this discussion. These are the notes of those articles, and let's start with these articles. The first article is written by this director of IIT Madras in the Hindu newspaper. I found this the most balanced article. This article basically says that the education policy 2020, it provides the ingredients and the right recipe. What we make of it depends on us. So what it wants to say is कि new education policy is a good policy, but ultimately the things which will matter is how we implement it and what we do with it. So this is somewhat a balanced view of this article. The next article is again from the Hindu, and they will also provide a rather balanced view. In this article they will discuss more about the polity angle of new education policy, that how new education policy, the implementation of new education policy also depends upon the relationship between states and the center. The third article, which has been written by this lady Kumkum Roy, she was a professor in GNU, and as the name itself suggests, this article is very hostile to new education policy, and it really digs a lot of criticism on that. It goes on to say that how new education policy does not discuss the social aspects of education. And this fourth article, which was published by Raghavendra P. Tiwari, he is also a vice chancellor in a university. Now this article also celebrates celebrates or glorifies the new education policy. So let's begin our discussion today. Maximum attention I will pay to the first article. Okay, we will read the first article line by line, as this will provide foundation to our view, and this I think is a very balanced view of this article. The article says let's read it line by line. In approving the National Education Policy 2020 on July 19, the Union Cabinet has taken an important step forward in India's transition from deprivation to development. Now these articles will also provide you some good vocabulary and some good ready-made lines which you can use in your answer writing. That is why it's important to read them. It marks the 4th major policy initiative in education since independence. The last one was undertaken a good 34 years ago and modified in 1992. Given our current demographic profile, the stage of development we are in, and the aspirations of our youth, the new policy has not come a day too soon. Basically what it says is कि इस पॉलिसी को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. It's very late. For 34 years we did not do anything serious about it. Next it says that the next paragraph talks about the scope of this new education policy. It says that this policy deals from preschool to doctoral studies. Doctoral studies means PhD, and from professional degree to vocational training. And next is a very good line which people can use and in answer writing, that it acknowledges the 21st century need for mobility, flexibility, alternate pathways to learning and self-actualization. मुझे ये line बहुत अच्छी लगी. I found this line very good. You can use it in answer writing. Now next paragraph, this was the next paragraph of this article. I broke this paragraph down because this can give us answer to this question, that what are the challenges to Indian education system since independence. Basically हर article जो है कुछ challenges discuss करेगा अपने व्यू पॉइंट से, और इस आर्टिकल ने भी डिस्कस किया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंडिपेंडेंस के बाद से क्या चैलेंजेस रहे थे. तो एक चैलेंज जो था वो था प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन. हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए. दूसरा था लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी.
अच्छे स्कूल्स नहीं थे, ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे। फिर है हमारे पास इतनी सारी मदर टंग्स थी, सो मैनी मदर टंग्स, लेकिन जो पढ़ाई होती थी इट वाज इन एन एलियन फॉरेन लैंग्वेज। एलियन मतलब बाहर की थी, वो विदेशी थी, फॉरेन लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी। A link language that despite being the global language of choice is alien to most of us. अब इंग्लिश है, it is a link language no doubt, मगर फिर भी it is alien to most of us. और एक और प्रॉब्लम जिन्होंने डिस्कस करी, it is a mismatch between the knowledge and the skills imparted and the jobs available. यानी कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही थी उसका जॉब से कोई ताल्लुक नहीं था। सो ये कुछ चैलेंजेस थे। अब इन चैलेंजेस को कैसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी टैकल करती है, इसी पर रेस्ट ऑफ द आर्टिकल इज़ बेस्ड। सो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल में डिस्कस किया जाएगा कि हाउ दिस पॉलिसी इट रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब जो शुरू के जो साल हैं बच्चे के, एक स्टूडेंट के या एक बच्चे के लाइफ के, उनकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है फ्रॉम एजेस 3 to 8। एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन चाइल्ड्स मदर टंग। ये कुछ रिफ्लेक्शंस है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे का एक एनालिसिस कीजिए, तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आपके माइंड में रहेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इन्होंने फिर एक बात बोली है इस आर्टिकल में कि मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी कुड बिकम द यूएसपी ऑफ इंडियन एजुकेटेड। मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी कुड बिकम द यूएसपी ऑफ एजुकेटेड इंडियन। मतलब कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज अगर आती है तो ये हमारी एक ताकत हो सकती है। ये हमारी ताकत कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमने देखा है बीपीओज़ में या सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, आईटी इंडस्ट्री में, वाई इंडियंस कुड डू अ लॉट वेल एंड बेटर देन चाइनीज़, बिकॉज इंडियंस Indians were also proficient in Chinese, were also proficient in English, but Chinese were not. तो एक मल्टीलिंगुअल होना हमारे लिए ज़रूरी भी है, ताकि हमें साउथ की लैंग्वेजेस भी आएँ, साउथ के लोगों को नॉर्थ की लैंग्वेजेस भी आएँ और नेशनल यूनिटी भी आगे प्रमोट हो सके। फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छा काम करती है। The new policy is breaking off the straight jackets of art, commerce, science streams in high school. एक बहुत अच्छा काम है कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस के जो अलग अलग सेक्शंस हुआ करते थे वो अलग अलग तरह से उन्हें डील किया जाता था स्टूडेंट्स को, उन सबको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब आर्ट्स के स्टूडेंट्स साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं या साइंस के, कॉमर्स के भी ले सकते हैं, और एक मल्टी डिसिप्लिनरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देन इट सेज इट इंट्रोड्यूसेस वोकेशनल कोर्सेज विद इंटर्नशिप। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस राइटर के अकॉर्डिंग। अब इन राइटर ने तो खैर बहुत तारीफ़ करी है कि वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराना, हालांकि कुछ राइटर्स ने इसकी बुराई भी करी है कि वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है कि आप चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहे हो। वो भी एक व्यू है और ये भी एक व्यू है। फ़िलहाल ये दिस राइटर इज़ वेरी मच हैप्पी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। ही ऑल्सो सेज, फिर एक बहुत अच्छा वर्ड लेकर आ जाते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज आप इंट्रोड्यूस तो कर रहे हो, मगर इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक तरफ आप वोकेशनल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि स्टूडेंट्स को आर्ट और साइंस और कॉमर्स भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया में तो पेरेंट्स ओवर जीलस होते हैं, मतलब जोश से कुछ ज़्यादा ही भरे हुए होते हैं, और उनको बहुत ही जल्दी होती है कि उनके बच्चे जल्दी से जल्दी अर्न करने लग जाएं। सो ही सेज हाउ एग्जैक्टली दिस विल बी रियलाइज टू बी वर्कड आउट गिवन द पेंशेंट ऑफ ओवर जीलस पेरेंट्स टू स्ट्रीम देयर चिल्ड्रन इनटू प्रोफेशंस एट द अर्लीस्ट। इतनी जल्दी होती है, हड़बड़ाहट होती है इंडियन पेरेंट्स को। ये भी हमारी एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ का एक आस्पेक्ट है। फिर ये नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, द ब्लू कॉलराइजेशन। ये मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगा। The blue collarization of vacations in our society is also a hurdle to be overcome. The blue colorizations of vocations in our society is also a hurdle to be overcome. Vocations friends कैसे का मीनिंग होता है, वो ट्रेनिंग्स जिससे आपको जॉब में हेल्प मिल सके। जैसे किसी को मैकेनिक बनाया जा रहा है, किसी को प्लम्बर, किसी को हेयर स्टाइलिस्ट या एक बार्बर का जॉब या फिर एक ब्यूटिशियन का, इस तरह की चीज़ों की जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कारपेंट्री की, इन तरह की चीज़ों से जिससे आपको एक जॉब मिल सके, तो उसे बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इनका ब्लू कॉलराइजेशन हो चुका है इंडियन सोसाइटी में। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं, जॉब्स जैसे मैकेनिक के, जैसे टायर रिपेयर करने वाले लोगों के,
एक होता है वाइट कॉलर जॉब, एक होता है ब्लू कॉलर जॉब। तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, वोकेशंस को हम ब्लू कॉलराइजेशन से हमने रिप्लेस कर दिया है। आपने देखा होगा कि जो अच्छी इंडियन फैमिलीज, अच्छी इन द सेंस जो एक एफ्लुएंट इंडियन फैमिलीज होती हैं, अच्छी इन द वे मतलब पैसों के मामले में जो अच्छी होती हैं, यानी कि जो एफ्लुएंट इंडियन फैमिलीज होती हैं, वो उनके यहाँ पर वोकेशंस नहीं को प्रेफर नहीं किया जाता है। वो वोकेशंस के नाम पे बस वो वोकेशंस उन्हें पसंद नहीं किया जाता है। वोकेशंस इंडिया में वही करते हैं जो थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं और जिनको जल्दी से जल्दी जॉब की ज़रूरत होती है। तो हम हाई पेइंग जॉब्स की वोकेशन ट्रेनिंग नहीं होती है, यूजुअली मैकेनिक की या इन सब चीज़ों की होती है, और सोसाइटी में इनको ठीक तरीके से नहीं देखा जाता है। तो ये फिनोमेना जो है ब्लू कॉलराइजेशन ऑफ वोकेशंस इन आवर सोसाइटी इज़ ऑल्सो ए हर्डल टू बी ओवरकम। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और इसे आप नोट कर सकते हैं। बट दिस नीड नॉट डिटर अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द मेरिट्स ऑफ द प्रपोज्ड पॉलिसी। फिर ये भी कहता है द पॉलिसी एनविसेजेस द 100 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन सोसाइटी इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक वर्ड है जो बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके मोहल्ले में मान लीजिए आपको 10th क्लास का या मान लेते हैं आपको 5th क्लास का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। अब आप फाइंड आउट करोगे कि 5th क्लास में कौन सी एज के बच्चे पढ़ते हैं। सपोज़ आप कहते हो कि 5th क्लास में 10 ईयर ओल्ड बच्चे पढ़ते हैं, तब आप ये देखोगे कि आपके मोहल्ले में कितने लोग 5th क्लास में पढ़ते हैं, एंड यू विल डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑफ 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, 10 साल के जितने बच्चे हैं उसे आप डिनोमिनेटर में रखोगे और न्यूमरेटर में आप रखोगे जितने बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 5th क्लास के बच्चे 10 ईयर ओल्ड होते हैं। ठीक है, तो इस रेशो को बोलते हैं, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको बोलेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट परसेंटेज। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा जितने स्टूडेंट्स 10th क्लास में, जितने स्टूडेंट 5th क्लास में पढ़ रहे हैं डिवाइडेड बाय जितने स्टूडेंट 10 ईयर ओल्ड हैं। ये रेशो इंडिया में तो बहुत कम है और ये हमारी कोशिश की जा रही है कि 100% तक पहुंच जाए। फिर आगे ये आर्टिकल बात करता है, इस आर्टिकल को बहुत पसंद आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क में रखी गई है। पोर्टेबल क्रेडिट्स की बात जो की गई है, मल्टीपल एग्जिट्स की बात की गई है कि आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 2 साल और रुक गए डिप्लोमा मिलेगा, पूरा कर लिया तो डिग्री मिलेगा। इस तरह की चीज़ को यानी कि मल्टीपल एग्जिट्स के सिस्टम को ये आर्टिकल बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद ये आर्टिकल इस चीज़ की भी तारीफ़ करता है कि फेजिंग आउट द एफिलिएट कॉलेजेस। जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं कि एक यूनिवर्सिटी है जिसने बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन दिया हुआ है, इस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है इट इज़ एम्पावरिंग दोज एफिलिएट कॉलेजेस एज ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है। फिर इस आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छा लाइन जो मुझे देखने को मिला वो है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज़ द बेन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, ये वर्ड आप लोगों को याद कर लेना चाहिए और आप अपने एसेज में और राइटिंग्स में, जीएस के आंसर्स में बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जैसे बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से, हमारी बॉडी में इकट्ठे होने की वजह से हम ठीक से फिज़िकली फिट नहीं रह पाते, हम काम नहीं कर पाते, ऐसे ही हमारी इंडियन गवर्नेंस में, स्टेट की गवर्नेंस में जब बहुत सारा रेगुलेटरी के नाम पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की तरह उसको वीक कर देता है, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए राइटर बोलता है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज़ द बेन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। बेन मतलब कॉज, इट मीन्स ओवर रेगुलेशन कॉजेज प्रॉब्लम्स इन गवर्नेंस। नेक्स्ट, NEP 2020 मेक्स ए बोल्ड प्रेस्क्रिप्शन टू फ्री आवर स्कूल्स, colleges and universities from the periodic inspections and make them on the path of self-assessment and voluntary declaration। यानी कि वो जो voluntary declaration है या self assessment है, इसकी वजह से जो periodic inspection या inspection राज जैसी चीज़ें जो हुआ करती थी, जिसे राइटर बोल रहा है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो जाएगा।
फिर ये आर्टिकल बोलता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और NEP इनको भी ध्यान में रखकर बात कर रहा है। और NEP ने जो बहुत अच्छा काम किया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो है इंडिक नॉलेज सिस्टम, यानी कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। So this article says the long neglected ancient Indian languages and the Indic knowledge systems are also identified for immediate action। अब ये चीज़ ये आर्टिकल तो तारीफ़ कर रहा है स्टेटमेंट की, इंडिक नॉलेज सिस्टम्स को जो NEP रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग इससे खफा भी हैं। वो कहते हैं कि इंडिक नॉलेज सिस्टम्स को प्रमोट करने के नाम पे आप सोसाइटी को कल्चरली डोमिनेट करवाना चाहते हो ब्राह्मण्स के थ्रू। ये भी एक व्यू है कुछ लोगों का। फ़िलहाल ये आर्टिकल इसकी तारीफ़ कर रहा है। आगे बात करते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि इन सब को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लिए ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 6% ऑफ GDP का टारगेट सेट किया गया है। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैसे हो पाएगा, क्योंकि हमारा टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है और ऑलरेडी हमारे नेशनल एक्सचेकर यानी कि हमारे जो ट्रेजर जो हमारा मनी है, हमारा जो नेशनल बजट है, उसके ऊपर हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी जैसे और भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हाउ विल वी बी एबल टू अचीव दिस थिंग, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये कहकर ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड दिस आर्टिकल सेज, जो कंक्लूजन है इसका वो यही है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोवाइड्स द इंग्रेडिएंट्स एंड राइट रेसिपी, व्हाट वी मेक ऑफ इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन अस। यानी कि NEP ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो हम पे डिपेंड करता है। और ये कुछ सॉरी ये पॉइंट ये कहीं और का था, तो ये समरी है जो हमें ले लेनी चाहिए। तो इस आर्टिकल के भी हम समरी देखते हैं। अभी तक इस क्या समरी रही है इस आर्टिकल की। ये आर्टिकल मैंने आपको इसलिए लिया क्योंकि इससे आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी केम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप ऑफ 34 ईयर्स। गुड पॉइंट्स क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के? इट लूजन्स द टाइट सिस्टम ऑफ रेगुलेशन विच हैड बीन a stumbling block in growth of academic institutions. Next good point जो है, it raises the government expenditure on education to 6% of GDP. Next good point जो है, this new policy is breaking of the straitjackets of art, commerce and science, and it recognizes the primacy of formative years, or it recognizes the importance of learning in the child's mother tongue. ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। Conclusion क्या है? NEP 2020 provides right ingredients and right framework. Its success or failures will depend on its implementation. So friends, this was the first article and now we will quickly move to the second article. जो second article है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है और इस आर्टिकल के अंदर जो अच्छी चीज़ है कि वो इसका पॉलिटी एंगल डिस्कस कर रहा है। और ये आर्टिकल कहना चाहता है, आर्टिकल एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है जो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस्ड बाय MHRD सेट्स फॉर इटसेल्फ द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। एक सिंपल सी लाइन है जो आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आगे ये कहता है कि इन ए फेडरल सिस्टम एनी एजुकेशनल रिफॉर्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली विद द सपोर्ट फ्रॉम स्टेट्स। तो एजुकेशनल रिफॉर्म अगर आपको लेकर आना है तो आप बिना स्टेट्स की रजामंदी के साथ तो ला ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत ज़रूरी और चैलेंजिंग काम जो रहेगा वो ये है कि सेंटर को स्टेट्स को अपने साथ विश्वास में लेकर चलना पड़ेगा। और इसके लिए आर्टिकल आगे भी एक बात बोलता है कि एक और, इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि इस आर्टिकल ने भी फॉर एग्जांपल बात करी कि मल्टीपल क्राइसिस इन द सिस्टम, कौन सी मल्टीपल क्राइसिस थी हमारे सिस्टम के अंदर अभी तक इसके अकॉर्डिंग, तो वो देख लेते हैं। ये भी हमें पता होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्डेड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी आउटकम्स। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट लेवल ज़्यादा थे। आउटकम्स मतलब स्टूडेंट आपको आपने स्कूल में रख तो लिया
उसे पास तो कर दिया, लेकिन वो आखिर में सीख कर क्या निकला? तो जैसे कि असर रिपोर्ट ने बार बार बताया है कि 7th क्लास का बच्चा 5th क्लास की बातें नहीं जानता, तो आउटकम्स बहुत कम रहे हैं, लिटरेसी पुअर रही है, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं और मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को इग्नोर किया गया है। तो इस वे में देखें तो ये आर्टिकल कुछ अच्छा काम करता है। और NEP क्या मेजर लेता है? इट इंट्रोड्यूसेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 3। इट ऑफर्स बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब जो रट्टा लगा लगा के लोग पास होते थे, उससे दूर जा रहे हैं। इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें ये आर्टिकल करता है, ये NEP करती है। फिर आगे की बात है, ये लाइन आप देखिएगा। देखिए, हर कोई कह रहा है कि मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मदर टंग में पढ़ाने का डीमेरिट क्या है, या एक काउंटर व्यू क्या है कि मदर टंग में पढ़ाने की जगह अगर हम इंग्लिश में पढ़ाएं तो क्या बेनिफिट है? तो ये आर्टिकल कहता है इंग्लिश में पढ़ाने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई फैमिली बार बार ट्रांसफ़र होता है किसी फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ऐसी किसी फैमिली के लिए मदर टंग की जगह मे बी इंग्लिश ज़्यादा बेटर होगी। अब 3rd क्लास में बच्चा है, वो 1 साल तमिलनाडु में रहा, फिर अगले 1 साल वो आंध्र प्रदेश में रहा, फिर अगले 2 साल वो पंजाब में रहा, फिर कभी वो यूपी में रहा। तो अगर आप उसको बार बार मदर टंग में पढ़ाओगे तो मदर टंग तो स्टेट की मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, फिर यानी कि वो तो शुरुआत के ही 8-10 सालों में 3-4 लैंग्वेजेस देखनी पड़ेंगी उसे। तो इससे अच्छा है कि उसे उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जिस लैंग्वेज में अगर उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र भी हो जाता है कहीं पे, तो भी उसकी एजुकेशन में हैम्पर नहीं होता। और फ्रेंड्स, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र सिर्फ जॉब्स में नहीं होता, मगर कई बार पेरेंट्स को माइग्रेशन भी करना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, यूपी से कोई माइग्रेंट महाराष्ट्र जाता है, तो वहाँ पे उसके बच्चे को हिंदी में पढ़ाया जाना चाहिए या फिर मराठी में पढ़ाया जाना चाहिए, और बार बार उसका स्कूल बदलेगा तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए एक इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। एक और व्यू मैंने कहीं पढ़ा था जहाँ पे लोग कह रहे थे कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं करते तो वी आर डूइंग इनजस्टिस, क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश इज़ द पासपोर्ट फॉर सक्सेस। और इंग्लिश को हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में अगर ही पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाएंगे, तो रिजल्ट क्या रहेगा कि गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको एजुकेशन इंग्लिश में नहीं मिल पाएगी, वो they will stay backward, and the students from elite backgrounds only they will be able to progress in their life. तो ये भी 2 व्यूज़ हैं why it is not necessary to go for mother tongue in the formative years of a child. फिर आगे ये बात करते हैं कि फ़ीस को रेगुलेट करने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन फ़ीस को जो रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है, ये अच्छी चीज़ तो है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो इस पे आर्टिकल ऐसा कहता है कि फ़ी रेगुलेशन एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ, बट द रेगुलेटरी प्रोसेस इज़ अनेबल टू रेन इन प्रॉफिटियरिंग इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशंस। मतलब डोनेशंस के नाम पे तो अभी भी बहुत धांधलेबाजी होती है। तो अनअकाउंटेड डोनेशंस के नाम पे भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा पैसे ले लिए जाएं। आप भले ही फ़ीस कम कर दें, लेकिन डोनेशन की भी एक ख़राब चीज़ होती है जो कि स्कूल्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में चलती है। फिर ये कह रहा है कि जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल की बात की गई है इस पॉलिसी में, दिस माइट बी रिजेंटेड बाय स्टेट्स। जैसा कि इस आर्टिकल ने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हैव रेमिफिकेशन ऑन द रिलेशनशिप ऑफ सेंटर एंड स्टेट विच वी कैन नॉट इग्नोर। तो फ्रेंड्स, ये एक और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन जो है इसकी, डेडलाइन टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय 2025 शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी एज अ गोल दैट विल क्रूशली डिटरमाइन प्रोग्रेस एट हायर लेवल्स। यानी कि अगर हम लिटरेसी को अचीव कर लेते हैं, 100% लिटरेसी को अचीव कर लेते हैं, तो इससे हमारे बहुत सारे और गोल्स जैसे कि हेल्थ केयर जैसी चीज़ें भी अचीव कर पाना हमारे लिए ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये 2 आर्टिकल्स देखे। अब हम इसके बाद एक आर्टिकल देखेंगे कुमकुम रॉय का। कुमकुम रॉय जो हैं, जैसे मैंने कहा, JNU में हिस्टोरिकल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में थे एंड शी हैज़ बीन ए वेरी फेमस स्कॉलर। और इस आर्टिकल में बहुत बुराई की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, और बुराई उन चीज़ों के लिए नहीं की गई है जो इन पॉलिसी में हैं, मगर उन चीज़ों के लिए जो उन पॉलिसी में नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि आप शादी में किसी को, अपनी शादी में किसी को बुलाओ, उसको 50 तरह के पकवान खिलाओ,
लेकिन पकवान खाने के बाद जब आप पूछो कि पकवान कैसे थे, तो वो कहे कि यार ये तो जो भी थे, लेकिन मुझे ये वो चीज़ नहीं मिली जो मैंने पड़ोसी की शादी में खाई थी या किसी और की शादी में खाई थी। मतलब हमेशा वो चीज़ पॉइंट आउट करना जो कि पॉलिसी में नहीं है, रादर देन लुकिंग इनटू कि पॉलिसी में क्या है। तो कुमकुम रॉय क्या कहती हैं कि इस पॉलिसी में क्या नहीं है? कुमकुम रॉय कहती हैं कि वी शुड नॉट do scrutiny of this policy only on the basis of what it has or what it says, but also on the basis of what it doesn't. क्या चीज़ें नहीं हैं? तो क्या चीज़ें नहीं हैं कि marginalized के बारे में कुछ बात नहीं की गई है इस पॉलिसी के अंदर। और वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि इस पॉलिसी में absent in the document is any mention of the term caste. मतलब कास्ट का तो कोई मेंशन ही नहीं किया इस पूरी पॉलिसी में। इसके अलावा रिजर्वेशन की भी बात नहीं की गई। एब्सेंट इज एनी मेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वेदर फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स और अदर एम्प्लॉयज़। मुझे ये जब मैंने व्यू देखा तो ये व्यू मुझे बहुत एक स्ट्रेंज और इनोवेटिव और डिफरेंट लगा, क्योंकि ऐसा व्यू मेन स्ट्रीम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग भी लगा कि एक इंटेलेक्चुअल, एक इतनी रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल, इतनी अच्छी पोजीशन में जो हैं, वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द टर्म कास्ट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, आई लीव दिस टू यू। यू टेल मी दैट शुड वी हैव मेंशन ऑफ वर्ड्स लाइक कास्ट एंड रिलीजन, all such words which remind us of our identities, should we have mention of these words in every policy document? अब एजुकेशन में अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, वेदर इट्स अबाउट स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स और वेदर इट्स अबाउट नॉट गेटिंग जॉब्स और वेदर इट्स अबाउट द रोट लर्निंग काइंड ऑफ थिंग्स विच एग्जिस्ट और वेदर इट्स अबाउट द लार्ज सिलेबस विच हैज़ नो रिलेवेंस इन द रियल वर्ल्ड, तो ये इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रेशर तो किसी भी स्टूडेंट को इक्वली अफेक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो। क्या आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा नहीं लगता? ये दोनों व्यू बहुत इंटरेस्टिंग हैं और जैसा आपको लगता है आप बताइएगा। लेकिन दिस इज़ ए वेरी गुड एनालिसिस ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें ये कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कास्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इनफैक्ट ये कहती हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन हो रही है उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोला गया है। शी सेज इक्वली डिस्टर्बिंग इज़ द पासिंग रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ट्राइबल एरियाज़, यानी कि ट्राइबल एरियाज़ में भी एजुकेशन कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ खास बातें नहीं की गई हैं। तो इससे हमें पता चलता है एक सोशल पर्सपेक्टिव न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, एंड फॉर दैट वी आर थैंकफुल टू, हम धन्यवाद देते हैं कुमकुम रॉय का कि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आए। और इसे भी अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा, बट यूज़ दिस इन ए वेरी सॉफ्ट मैनर। तो ये भी कहती, इन्होंने एक और बात करी कि एक तरफ तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट क्रिटिसाइजेस द कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऑन द अदर हैंड इट इज़ समवॉट प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि कहीं कहीं पर बात की गई थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को एक तरीके से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाएगा। तो एक तरफ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ कर रही है। तो ये दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं? सो दिस इज़ व्हाट दिस स्कॉलर Kumkum Roy is also stating that this is particularly crucial as a document visualizes increased benign privatization of education, attempting to distinguish this from commercialization. In a situation of growing privatization and the near collapse of public institutions of higher education, how these policies will be implemented is a matter of concern. Kumkum Roy फिर एक बात और what she states is कि इस पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की बहुत बात की गई है। दे हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट मल्टी डिसिप्लिनैरिटी, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनैरिटी के टाइम को डिस्कस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात की है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में कहीं भी वुमेन स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ या फिर मीडिया स्टडीज़, दलित स्टडीज़, स्टडीज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, इस तरह की चीज़ों की आपने बात क्यों नहीं करी? यानी कि as we see, as I said in the beginning, Kumkum Roy basically is criticizing the new education policy not for what it says but
फॉर वॉट इट डज नॉट सेज। वो ये भी कहती हैं कि दीज डेवलपमेंट्स आर इग्नोर्ड इन वॉट पर्पज टू बी अ फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट इज़ इंट्रिगिंग। ये चीज़ें क्यों इग्नोर की गई हैं, तो कुछ दाल में काला है। कुछ इस तरह का व्यू कुमकुम रॉय का है। कुमकुम रॉय एक बात और बोलती हैं, जैसे कि इस पॉलिसी में हमने देखा था कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी पूरी कंट्री के लिए, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि हमें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एवेल्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो व्हाट शी सेज इज, रीड दीज लाइन्स, दैट इंस्टेड ऑफ an overarching centralized agency, an innovative education policy would attempt to create space for context-specific and diverse modes of evaluation for different fields of learning is a possibility that remains unexplored. That is, instead of an overarching centralized agency, एक हर जगह फैली हुई centralized agency की जगह एक innovative और education policy अगर जो होगी वो ये कोशिश करेगी कि एक context specific एवोल्यूशन हो और एक डाइवर्स मोड्स ऑफ एवोल्यूशन हो। देन दिस आर्टिकल, ये दिस प्रोफेसर शी ऑल्सो स्टेट्स कि शी समवॉट क्रिटिकल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विद इन हायर एजुकेशन। इनका कहना है कि इस तरीके से क्या हम ये कहना चाहते हैं कि फॉरेन की ये परफेक्ट है, एंड दिस इज़ वॉट वी शुड ट्राई टू बी। फिर इनका जो एक व्यू है वो है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के लोग अक्सर प्रेजेंट नेशनल गवर्नमेंट के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं और उनका काफ़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है वहाँ पे, काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं। तो उसी तरह से कुछ थॉट्स हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़, इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए उनके वहाँ पे एक टीचर्स का एक स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टूडेंट यूनियन होती हैं, टीचर्स यूनियन होती हैं। आप इन सब को एक झटके में इग्नोर नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो दिस इज़ व्हाट शी सेज, एंड इसको अगर हम फॉर्मली रीड करें तो दिस इज़ व्हाट हियर शी हैज़ रिटन, that several universities and higher education institutes have evolved and sustained democratic mechanisms including academic and executive councils. These formulate, discuss and implement policies, courses and other institutional matters. What has made these vibrant institutions in the presence of faculty and students, elected as well as on the basis of seniority and rotation, jettisoning these structures, norms and practices for a linear top-down mode of administration, as envisaged, will deprive members of higher education institutes of an opportunity to engage with the challenges of democratic functioning. Basically इनको लग रहा है, कुमकुम रॉय को लग रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रही है और एक लीनियर, मतलब सीधी एक लाइन में टॉप डाउन मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स की यूनियन थी या फिर टीचर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे या स्टूडेंट्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या स्टूडेंट्स के यूनियन थे, उन सब को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसके साथ ही ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है, और ये आर्टिकल शुरू भी एक नेगेटिव टोन पे हुआ था। इन आर्टिकल ने बात भी ये करी थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक तो आप एक कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में और लॉकडाउन के बीच में लाए, जिसमें डिबेट्स और डिस्कशन ही पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में आप एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कहाँ से लेकर आए? शुरू से ही ये आर्टिकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करता है। और मैं कुछ और जगह भी देख रहा था कि कैसे लोग इस आर्टिकल को कोट कर रहे हैं। एक फेसबुक पे एक हैशटैग भी चल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ प्रमोटिंग ब्राह्मणिज्म, या NEP इज़ ब्राह्मणिज्म, या फिर रिजेक्ट NEP, इस तरीके के करके वो भी यही बात कर रहे हैं। उस तरह के व्यूज़ भी इसी थॉट पर बेस्ड हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपर कास्ट जो हैं उनको फेवर किया जा रहा है और जो लोअर कास्ट हैं इट इज़ अगेंस्ट देम। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक गुरुकुल सिस्टम इम्पोज किया जा रहा है, उनके ऊपर एक उन्हें इंग्लिश स्टडी करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनको कल्चरली डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्योंकि कास्ट का कोई मेंशन नहीं है, रिजर्वेशन का कोई मेंशन नहीं है, इसीलिए इट इज़ एंटी दलित और एंटी लोअर कास्ट, ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या
should every document have mention of caste or religion? Documents such as policy documents on education, तो इसके both sides of view हैं. इसका एक अगेंस्ट साइड है कि कास्ट के ऊपर, अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं और वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई वैल्यू नहीं है. वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट क्या है? वो एक बुक है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से डिटेल में मेंशन किया जा चुका है रिजर्वेशन को. और ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बात की गई हैं, कास्ट एट्रोसिटीज़ को लेकर SC/ST प्रिवेंशन एक्ट की बात की गई है. तो ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक डिस्कोर्स में कास्ट को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन क्या हम इन्हें हर जगह इंक्लूड करना चाहिए? तो ये है अगेंस्ट में. और फेवर में भी एक थॉट है कि एजुकेशन वो चीज़ है, एजुकेशन हैज़ द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आपको कास्ट एट्रोसिटीज़ को बंद करना है और कास्ट सिस्टम को वीकन करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन पॉलिसी भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करे और उसको करेक्ट करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले. इसके साथ ही हम फोर्थ आर्टिकल पे आ जाते हैं. फोर्थ आर्टिकल को हम बहुत ब्रीफ में करेंगे. फोर्थ आर्टिकल में जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि द पॉलिसी की इट इज़ अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, देखिए, दैट एम्स टू लिबरेट इंडियंस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ए न्यू कॉलोनियल माइंडसेट. ये कहता है कि इंडिपेंडेंस के बाद से हम लोगों ने जिस तरीके से एजुकेशन को टैकल किया है वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूलर्स जो थे उनके हैंगओवर में किया है. जैसा हमें अंग्रेज़ सिखाकर चले गए थे वैसा ही हम एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे थे. हम उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की वोकैबलरी में इसको रन कर रहे थे. तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को, लोक विद्या को, गुरुकुल सिस्टम को, इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है, तो इट इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड टू लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट और न्यू कॉलोनियल माइंडसेट. तो ये इस तरह की बातें इस आर्टिकल में हैं. द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल इज़ राघवेंद्र पी तिवारी, हु हैड रिटन दिस आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस. तो इनकी जो हेडलाइन है यही हमें इस आर्टिकल को समराइज़ करने में हेल्प करेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनविसेजेस डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड. यानी कि इंडियन माइंड जिसको ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज़ कर लिया था, वो आज भी कॉलोनाइज था, उसको डीकोलोनाइज़ करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी कुछ करती है. And New Education Policy 2020 provides us with a roadmap for reclaiming, re-articulating and restructuring the Bharatiya self for becoming a global leader, Vishwa Guru, where equity, equality and fraternity will be celebrated. So ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और इसका भी काउंटर व्यू हो सकता है, और बट दिस इज़ ऑल्सो ए व्यू इन इट सेल्फ. एंड यहाँ पे कुछ अच्छी लाइंस हैं. द पॉलिसी रीअसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड लोक विद्या अलॉन्ग विद साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज इन करिकुलम एंड पेडागोजी. इट इज़ अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट दैट एम्स टू लिबरेट इंडियंस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ न्यू कॉलोनियल माइंडसेट. तो ये कुछ बातें हैं. बाकी की जो बातें की गई हैं वो मोर और लेस पहले के आर्टिकल्स के जैसी ही हैं, जो हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं. एंड टाइम इज़ रनिंग आउट, तो अभी हम इसे यहीं पे क्लोज़ करते हैं. इस आर्टिकल में एक और अच्छी लाइन जो लिखी गई है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग में, वो है कि हायरार्कीज़ जो क्रिएट हो गई थी डिसिप्लिन्स के बीच में, कि टेक्नोलॉजी वालों को अच्छा समझा जाता था, उससे नीचे थे साइंस वाले, उससे नीचे थे आर्ट्स वाले. तो ये जो इस तरह की हायरार्कीज़ इंडियन सोसाइटी में क्रिएट हो गई थी, उन हायरार्कीज़ को ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तोड़ देती है. So this policy will prove extremely beneficial in dismantling hierarchies and barriers between different knowledge systems by providing easy and accessible methodologies. So friends, this was the fourth article which celebrates and which appreciates and admires the new education policy for decolonizing the Indian mind. Article third जो था, this was criticizing the new education policy for not speaking a word or not taking in detail issues related to caste discrimination and reservation and other social aspects of education. This second article discussed the issues related to polity, that is the relationship between center and state, and how they will be impacted or how they will have some influence on new education policy
at least on how we are able to implement the new education policy. The Article 1 was, I think, one of the most balanced one, which said that new education policy is good, but ultimately what matters is whether we will be able to implement it in a right way or not. तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अब समराइज़ कर देता हूँ फिर से ये सारे जो भी अभी तक हमने देखा अपने एक दूसरे डॉक्यूमेंट में जो यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं. इफ़ यू वांट दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स, दीज नोट्स एंड द कलेक्शन ऑफ दीज आर्टिकल्स, you can drop me an email on my email ID. I will send you the PDF, or you can mention the same in the comment section. अपना email address लिख देना, I will send you these PDF on your email. So let's read out this summary of the 4 articles which we read on new education policy. ध्यान से read कीजिए इसे, चाहे तो आप लोग इसको पॉज करके स्नैपशॉट भी ले सकते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम deprivation to development. New policy has come very late. Last was taken, the one was taken 34 years ago and modified in 1992. Summary, introduction में आप लिख सकते हैं new education policy came after a very long gap of 34 years. Good points of new education policy: it loses the system of regulation which had been a stumbling block in growth of academic institutions. It raises the government expenditure on education to 6% of GDP. Next point, the new policy is breaking of the straitjackets of art, commerce and science and recognizes the primacy of formative years. शुरुआत के स्टूडेंट के या चाइल्ड के शुरुआत के सालों को वो रिकोगनाइज करता है, उसकी इम्पोर्टेंस. इट ऑल्सो रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन द मदर टंग ऑफ चाइल्ड. लास्ट में कंक्लूजन आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं. NEP 2020 provides right ingredients and right framework. Its success or failures depends on its implementation. आर्टिकल 2 जो हमने देखा था वो था, उसकी समरी है: A new educational reform can be implemented only with support from the states. In structural terms, the NEP's measures to introduce early childhood education from age 3, offer school board education twice a year to help improve performance, move away from rote learning. Third point जो था: In a large and diverse country where mobility is high, the student should have the option to study in the language that enables a transfer nationally. Fourth point जो था कि unaccounted donations भी हैं, उनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. और जो लास्ट पॉइंट इस आर्टिकल में था कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल की आपने बात तो करी है, मगर इट विल बाउंड टू बी रिजेंटेड बाय द स्टेट्स. नेक्स्ट आर्टिकल जो था जिसमें क्रिटिसाइज़ किया गया था इस पॉलिसी को, वो है कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द टर्म कास्ट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ट्राइबल एरियाज हैव नॉट बीन डिस्कस्ड एफिशिएंटली एंड द डॉक्यूमेंट विजुअलाइजेज इंक्रीज्ड बिनाइन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अटेम्प्टिंग टू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम कमर्शलाइजेशन. और फोर्थ पॉइंट जो है, instead of an overarching centralized agency, an innovative educational policy should attempt to create space for context-specific and diverse modes of evaluation for different fields of learning is a possibility that remains unexplored. बेसिकली कि एक नेशनल एजेंसी बनाने की जगह, एक नेशनल सिस्टम बनाने की जगह आपको डाइवर्सिटी को और कॉन्टेक्स्ट को भी माइंड में लेकर चलना चाहिए. आर्टिकल 4 जो था उसने कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी envisages decolonizing the Indian mind, यानी कि इंडियन माइंड को डिकोलोनाइज करने की वो कोशिश करता है. It provides us with a roadmap for reclaiming, re-articulating and restructuring the Bharatiya self. Third जो था, policy reasserts the importance of Indian knowledge and Lok Vidya along with scientific methods in curriculum and pedagogy. और जो लास्ट लाइन है, it prove extremely beneficial in dismantling hierarchies and barriers between different knowledge streams by providing easy and accessible methodologies. यानी कि hierarchies जो डिसिप्लिन के बीच में हो गई है उसे ख़त्म करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कशन क्लोज करता हूँ. हमने देखे 4 डिफरेंट व्यूज़. फोर्थ व्यू बहुत तारीफ़ कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की. थर्ड आर्टिकल ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. सेकेंड आर्टिकल ने सेंटर स्टेट रिलेशंस को ध्यान में रखकर कुछ बातें करी. और फर्स्ट आर्टिकल ने हमारा जो है एक बैकग्राउंड सेट किया.
So with this friends, I close this discussion. I hope this was beneficial to you. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम और भी आर्टिकल्स लाने की ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे. So thank you friends. I hope you loved this session. Please provide your feedback. Thank you.